सो वेलकम टू दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन। आप सबका स्वागत है। और आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, विच इज़ द हॉट टॉपिक दीज डेज। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव ऑल ऑफ यू हियर। एंड हमारे पास बहुत तजुर्बे वाले विशेषज्ञ हैं दो, जो अपने अपने तरफ से इस विषय के बारे में हमको बताएंगे। वन इज़ द मिलिट्री एस्पेक्ट, जो मेजर जनरल जी.डी. बख्शी वो बताएंगे हमको, एज ही विल बी टॉकिंग अबाउट द वॉर सिचुएशन और इंडिया का कैसे उसमें हो सकता है और वहाँ के क्या व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर। एंड सेम गोज फॉर एम्बेसडर बी सोनी, हु इज़ द फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन। तो वो इस बारे में हमको बताएंगे। एक्चुअली वो खुद एम्बेसडर रह चुके हैं, सो इट वुड बी अ डिलाइट टू हियर हिम बिकॉज ही हैज़ बीन देयर, ही नोज द सिचुएशन तब की एंड आज की भी। वो बता पाएंगे हमको कि क्या चेंजेस आ गए और आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो यस, ओवर टू यू मेजर जनरल जी.डी. बख्शी। Thank you very much. Firstly, my profuse apologies. I was hoping to give you a good map display so that it would be understood. I'm sure we'll be able to get it on now. This war in Ukraine was long coming. Most of us who were working in this field saw it. And what I want to tell you is that in the Indian Military Review, of which I am the editor, we got 2-3 generals got together and we did a war game. We published that war game about 3 days before the war started. And I am I'm not happy with what has happened, but I am professionally satisfied to say that most of what we had forecasted, the various options to both the sides and what would be the outcome of the war, etc., have come fairly accurate. We were working on the Russian doctrinal methodology and, of course, Ukraine, what we know of them, but mostly on the Russian, the way they fight. Now, one surprise that we got was that for some reason, Russia has pulled heavy punches in this war. Just to explain at the very outset, there is the Russian way of taking cities, which we studied. Of course, World War II, we all know of the famous battles of Stalingrad, Leningrad. Now 5 lakh, 6 lakh troops went into street by street fighting. That was World War II. So quite obviously, if you work on that model, the size of the army that the Russians required to capture 7 or 8 cities in Ukraine would be something like 7, 8, 9 lakhs. But they started the invasion with 1.5 lakhs and now have gone to 1.9 lakhs. So what is the reason for this? The reason for is that they changed doctrine for capturing cities. So what is their new pattern of capturing cities? We saw this in Chechnya, where they captured Grozny and a number of other cities. They surround the city with tanks and everything. They made announcements, all civilians get the hell out. We are coming. Ye road, or aap get the hell out of the way. So the moment quite obviously the civilian, and to help them, they landed a few shells in the city to tell you what was coming. The civilians evacuated every which way, and then they pounded that city with 40 to 50 batteries of Grads. What are Grads? They are multi-barrel rocket launcher. Each of these trucks has 40 tubes. That means 40 rockets, and there are 6 in a battery. So 6 into 50. Imagine, huge. The rocket is bigger than my size and explosive punch. Along with that, self-propelled artillery. Along with that, and then their tanks would charge in. They would charge into the city center, get to the city center, any government building, any headquarters of the enemy side, they would just destroy it, bring it down in a heap of rubble. No prisoners of war are required as far as the Russian doctrine was concerned. And then the tanks would fan outwards and start capturing selected localities, and then within a day or two the city would be over. So we thought, yes, with this methodology, if the Russians work, our estimate was 10 days. Our estimate was 10 days published 3 days before the war, right?
that 10 days they should be able to finish. So before I start, यहाँ पे जो कुछ जरूरी जो हैं आपकी शहर, ये है कीव, यूक्रेन की राजधानी, ये है खारकाइव जो कि उनकी पुरानी राजधानी थी, एंड इट वाज दी लाइक बॉम्बे इज आवर फाइनेंशियल कैपिटल, खारकाइव इज देयर जो है कैपिटल। ये है डोनबास का रीजन जिसमें दोनेत्स्क और लुगान्स्क ये दो प्रांत हैं विच आर रशियन स्पीकिंग एरियाज, ठीक है। और ये है द सी कोस्ट ऑफ यूक्रेन जिसमें दिस इज द क्रिमियन पेनिनसुला। इसमें तीन जो मेन पोर्ट सिटीज हैं यूक्रेन की, एक है सेवास्तोपोल जो क्रीमिया में ऑलरेडी रूस के पास है, दूसरी है मारियोपोल, पोर्ट सिटी ऑफ मारियोपोल, तीसरी है पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा। ये तीन पोर्ट आप पकड़ लें, you have cut Ukraine off from the sea, it becomes a landlocked country, right? अच्छा, ये Dnieper river है, Dnieper is pronounced Dnieper, D silent, so it's pronounced like this. हालांकि interesting insight from Vedic mythology, दानव जो थे उनकी माँ थी दानु, and they were supposed to have been pushed out of India into European side. So you find there is Danu river, there is Dnieper, Dniester, Don. A whole lot of rivers are with this D sound, you see. So this is Dnieper. This is the Dnieper river with the D sound silent, which more or less partitions Ukraine into an eastern half and into a western half. ठीक है? So this is important for us to understand. Next please. Now, why this war now? There are certain military technical factors. Please let us try and understand these military technical factors. 1980s, the Americans started waging economic warfare against Russia. The primary, very simple, this is called net assessment methodology. Andrew Marshall and the other strategists, it is amazing the brain power that is available there. They started working कि what is Russia's main export? Oil, gas, इसको hit करो. They had Saudi Arabia in their pocket, UAE in their pocket. Incidentally, they are not picking up the calls of Biden now. अच्छा, they had them in their pocket. They started, after the oil shock of 1973, you remember the third Arab-Israeli war, when the world, first time they started using oil as a weapon, weaponized oil. And the oil prices had skyrocketed and hit the global economy. So now the Americans, they started getting the price of oil down. In 1986, are you aware that the price of oil had reached something like $30 to $10 a barrel? This was the band in which it was fluctuating, which it used to be in the 1930s. This collapsed the Soviet economy. Not Russian, the Soviet economy. Collapsed the Soviet economy. Sari fighting machine, vagara. Look, wo Acharya Kautilya, Chanakya has said, of the Kosha, the Danda. Kosha is the treasury. Danda is the army. He says the Kosha is more important. Because unless you have money, you can't finance an army. And this is what they did. The Russian army, the Russian navy, air force were the biggest in the world. The most titanic war machine built, which had defeated Russia Germany single-handed. Don't forget that. What were the casualties in the Second World War of the Russians? 25 million. Germans, 7 million. Can you take a guess at what were the American, British, French casualties combined put together? 1.1 million. Now we know who did the fighting. Now you know who did it is Russia, Soviet Union, which single-handedly defeated Nazi Germany. They fought the battle from the gates of Moscow back to Berlin. Don't forget, Russian tanks had entered Berlin, and at that time the United States and UK, they cleverly stayed out of the war to let the two sides destroy themselves. It was only towards the end that they got it. So what I'm trying to tell you is that the Soviet collapse that happened in 1991 was a cumulative of the casualties, the losses they had still not recovered from manpower losses.
Their demography is very poor today. It's down. It's in the negative more or less, you see. So they had suffered heavily. The Soviet Union collapsed, and overnight, without a shot being fired, it was flushed down the tube of history, right? A great superpower like that. And overnight the world became from a bipolar world into a unipolar world. Now the rest I'll leave more for Soni Saab to cover when he does his bit. But I just want to tell you that when the Soviet Union collapsed, James Baker, the Foreign Secretary of the United States, he had met Gorbachev. And Gorbachev said, "ठीक है भाई, we will let the Germans unite, but you have to give some guarantees for Russia's security." So he said, not 1 inch, listen to this carefully, not 1 inch eastward expansion of NATO, right? But we all know how NATO has expanded, and 14 countries since then are now part of NATO, which were once part of the Soviet Union or were part of the Warsaw Pact. वो उनके गेट्स पे पहुंच गए. Now why militarily, why is it worrying Russia? Russia is flat plains, कोई हिमालय पहाड़ नहीं है उधर. यूराल्स आते हैं साइबेरिया को प्रोटेक्ट करने, कोई पहाड़ नहीं जहां पे वो डिफेंस लाइन बना सके. They have been invaded first by Napoleon, then by Hitler from the west. So they are very worried. Their only way to secure themselves is to have buffer states. Please understand the Russian military reasoning, rationale for doing what they have done. They said, धकेलते धकेलते आप ले गए. 2008 बुचारेस्ट कॉन्फ्रेंस, आई थिंक अगस्त में थी, बुचारेस्ट कॉन्फ्रेंस में सडनली पीपल केम अप विद द ब्रेन वेव कि रशिया तो बहुत कमजोर हो गया है, तो वी विल एब्जॉर्ब यूक्रेन एंड जॉर्जिया इनटू द नेटो. Putin had come, he came of course in 2000, but they had, Russians had said, हमारी रेड लाइन, हमारी लक्ष्मण रेखा, हमारी लक्ष्मण रेखा जो है वो यूक्रेन जॉर्जिया. 2008 में, you know, we had that, I don't know how to pronounce that, Shalskaville, जो जॉर्जियन प्रेसिडेंट था, उसका नाम था जॉर्ज Shakasvali, you know, that is why a local expert is required for the pronunciation. So Shakasvali साहब वो बड़े अमेरिका के चमचे बन गए, और you know, he started threatening to join the NATO. We had all these colored revolutions, etc., etc., and that is the time when Russia attacked, and 4 दिन में Georgia खलास. I just would like to show you, just go to the next, beta. Yeah. Here is a map of Georgia. ये है जॉर्जिया का नक्शा, ये है अबकाजिया की प्रोविंस जो ब्लू में है, और ये है ओसेटिया की प्रोविंस. जैसे दोनेत्स्क और लुगांस्क रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं, ये भी रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं. तो जहां उनको लगा कि ये नेटो की बात कर रहा है, दे स्टार्टेड मासिंग ट्रूप्स एग्जैक्टली एज दे हैव डन नाउ, एंड देन दे अटैक्ड. यहां पे उन्होंने मरीन लैंडिंग की. उनकी आई थिंक 58th आर्मी थी, वो वहां पे लैंड करी, उनके मरीन्स लैंड किए. उन्होंने ये पूरा अबखाजिया पकड़ लिया, उन्होंने पूरा ओसेटिया को नॉर्थ से अटैक किया, पकड़ लिया. इसके अलावा उन्होंने कोई 5-6 शहर और पकड़े, और उसका तख्ता पलट हो गया. वो साहब मेरे ख्याल किसी जेल में शायद अपने हील स्कूल कर रहे हैं. उन्होंने फिर जो बाकी, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बाकी सारा पकड़ा था वापस कर दिया. बोले साहब ये दो हम नहीं देंगे, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है. बिकॉज यू सी ये बिल्कुल चेचनिया के नजदीक है, और ये है, बोला वी कांट गिव दिस, ये हमको थ्रेटन करता है. एंड दैट वाज इट, द वर्ल्ड हैड टू एक्सेप्ट. 2014 में फिर थोड़ी ऑयल की प्राइसेस डाउन हुई, फिर चुलबुली शुरू हुई साहब नेटो की तरफ से. ऑरेंज रेवोल्यूशन हुई जिसके बारे में सोनी साहब बताएंगे, और वो दैट रशियन यानकोविच जो था उसको उन्होंने डिपोज किया इन अ कू. लेट्स बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट वाज अ कू. और फिर रशिया को चुनौती दी. नेक्स्ट स्लाइड बेटा. रशिया ने रिएक्ट किया साहब, विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड क्रीमिया पकड़ लिया. क्रीमिया सेवास्तोपोल उनका नेवल बेस है ऑन लीज,
naval base on lease. So they just went out from there and they grabbed the whole of Crimea. और फिर उनके एक जनरल साहब हैं, I'll just tell you his name, वो जो रशियन जनरल थे उनके नाम पे एक डॉक्ट्रिन शुरू हुई, और ये जो डॉक्ट्रिन है इसके चलते they started I'll just tell you that they started hybrid warfare. हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब ना मेजर कन्वेंशनल वॉरफेयर है, ना ये गुरिल्ला वॉरफेयर, के बीच में हाइब्रिड वॉरफेयर. उनका वैगनर ग्रुप, उन्होंने मर्सिनरीज रेज किए और अटैक किया. बेटा ये जो दोनतास्क का जो एरिया है, दोनबास का जो एरिया है, दोनतास्क और लुगांस्क, नेक्स्ट दिखाइए स्लाइड, ये स्लाइड को ध्यान से देखिए. ये है दोनतास्क और लुगांस्क, और इसके अंदर उन्होंने जो है ये जो एरिया है यहां तक पकड़ लिया. उनके जो पार्टिजन्स थे, उनके जो सिविल ड्रेस में जो फौज ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने पकड़ लिया. और ये जो लाइन है ये बोलते हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट. जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट बन गई. इतना इस इलाके का पकड़ लिया, कुछ भी नहीं कर पाया कोई. ठीक है. नाउ वी कम टू द प्रेजेंट. ठीक है, वी कम टू द प्रेजेंट. वंस अगेन ये बातचीत गरमाने लगी कि हम जो है साहब पकड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. तो उसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड, रशिया, हाँ, जो पंगा जिससे शुरू हुआ, यूक्रेन में पिछले साल जुलाई में एक अमेरिका, पोलैंड, यूक्रेन और लताविया ने मिलकर एक एक्सरसाइज करी, फौजी एक्सरसाइज करी, जिसमें कि अगर रूस अटैक करता है तो वो क्या करेंगे. और एक जगह उन्होंने ब्रीफिंग दी कि हम कैसे आगे बढ़ के रशिया पे पलटवार करेंगे. जब ये रशियंस को इसकी बारे में पता चला, उन्होंने साहब अपनी जो है ये आर्मीज देखिए रशिया की चारों तरफ घेरा लगा के बैठ गई. जैसे हमारे कोर होते हैं हमारी आर्मी में, एक कोर में 3 डिवीजन, एक डिवीजन में 3 ब्रिगेड, एक ब्रिगेड में 3 पलटन, एक पलटन में 1000 आदमी. सो दिस इज द मैच. उनकी 12 कंबाइंड आर्मीज हैं, दे आर कॉल्ड CAAs, 12 कंबाइंड आर्मीज. और मैं खासकर तवज्जो आपकी इस तरफ ले जाता हूं, ये जो है 41st आर्मी है जिसने कीव के ऊपर हमला किया है, और ये उनकी बाकी आर्मीज, और फिर क्रीमिया में उनकी आर्मी चारों तरफ से घेरा लगा के बोले हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. नाउ दीज डेज द सैटेलाइट्स कैन पिक every single tank, truck, vehicle on the ground. What they can't, pick up is what is the intention of this force. I know this force. एक टैंक ट्रक में आपको गिन के, एक आर्टिलरी गन, एक रॉकेट लॉन्चर, एक मैं टैंक आपको गिन के बता सकता हूं फ्रॉम सैटेलाइट फोटोग्राफ्स. बट आई कांट टेल यू कि ये क्या एक्सरसाइज के लिए आए हैं, ये क्या डराने के लिए, आंखें दिखाने के लिए आए हैं और फिर चले जाएंगे, या ये हमले के लिए आए. एंड द रशियंस आर वेरी गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स. दे हैव स्पेशल साइंस कॉल्ड मास्कारोविका. मास्कारोविका मीन्स मास्क, जैसे मास्क चढ़ता है, हाइडिंग थिंग्स. इंफॉर्मेसिया, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, वो ये करते हैं. हाउ टू कंफ्यूज द एनिमी कि हम हमला करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, कितनी ताकत में करेंगे, ये नहीं पता देने वो लगते. सो जैसे ही ये डिप्लॉयमेंट हुई इस साल, ये अटकलें लगनी शुरू हो गई. अमेरिकन CIA ने बोलना शुरू किया कि ये करेगा. उसी वक्त जो बाइडेन साहब ने और वो सब ने थ्रेटन किया, अगर तुमने किया हम ऐसी सैंक्शन लगाएंगे कि तुमको तबाह कर देंगे, जैसे कि हमने 1991 में किया था. हम तबाह कर देंगे तुमको सैंक्शन लगा के. ठीक है. अब साहब सवाल यह है कि रूस के पास आज के दिन 6300 न्यूक्लियर वॉरहेड है, अमेरिका के पास 5500 के करीब. दैट मीन्स रशिया हैज मोर न्यूक्लियर वॉरहेड देन दिस. दे हैव डेवलप्ड द टोपोल intercontinental ballistic missile. They have developed hypersonic missiles which can maneuver, and they come at 6-7 times the speed of sound. और उनकी टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी अब अमेरिका को मात कर गई है.
America was thinking of deploying hypersonic missiles in Ukraine, Poland, and Romania, which means their missiles could have struck Moscow in 3 minutes. Hypersonic missiles. अब साहब जब क्यूबा में ये तमाशा 1962 में हुआ था, तो अमेरिका ने तो बोला कि साहब या तो न्यूक्लियर वॉर होगी या तो इसको हटाओ. विल अमेरिका एक्सेप्ट दिस हैपनिंग इन मेक्सिको? विल अमेरिका एक्सेप्ट इट हैपनिंग इन क्यूबा? उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया. तो हाउ आर यू सेइंग द रशियंस विल ब्लडी वेल एक्सेप्ट? सो फार द रशियंस वर एक्सेप्टिंग. व्हाई आर दे नॉट एक्सेप्टिंग नाउ? बेटा जस्ट गो बैक अबाउट 3 स्लाइड्स. more. लीव दिस. ये है S-400, S-500 मिसाइल, जो कि हमारी सेना ने भी ले लिए. इस मिसाइल की खसूसियत, ये 600 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में देखता है और इसमें 4 डिफरेंट टाइप के मिसाइल हैं. एक मिसाइल 40 किलोमीटर पे जहाज उड़ा सकता है. जहाज, क्रूज मिसाइल्स, यूएवीज सबको बर्बाद कर सकता है. हेलीकॉप्टर सब बर्बाद कर सकते हैं. 40, 150, 250 और 400 किलोमीटर की रेंज तक दे कैन डिस्ट्रॉय एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट थे, दिस इज द मिलिट्री टेक्निकल फैक्टर. अभी तक अमेरिका की एयर पावर में सुपीरियरिटी थी. रशिया ने ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लाके वो सुपीरियरिटी को खलास कर दिया. अपनी भी जो उसके एयरक्राफ्ट हैं बराबरी के, Su-35, Su-57 स्टेल्थ फाइटर, ये उसने बना के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, पूरा टेक्निकल गैप जो कि कन्वेंशनल आर्म्स में था वो क्लोज हो गया है. इट इज दिस विच हैज एम्बोल्डन्ड पुतिन कि तुम जरा लड़के दिखा दो अब वहां. और अमेरिका ने भी पहले दिन से कह दिया, वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड. अब लोग कहते हैं कि आपने भाई नहीं कर सकते थे तो बोला क्यों? भाई उन्होंने बोला कि फिर हमारी कन्नी कटती. तो उन्होंने कह दिया कि हम तो साहब बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेंगे, बिकॉज वी कैनॉट फाइट अ वॉर विद रशिया इन इट्स बैकयार्ड. ये मिलिट्री टेक्निकल रियलिटी है. जस्ट कम बैक बेटा, 3 स्लाइड्स है. और हाँ, यहां पे आइए. तो साहब उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी. अब ठंडे पसीने छूटने शुरू हुए. रशिया ने बोला, देखे मेरी डिमांड है कि यूक्रेन, जॉर्जिया नहीं जाएंगे नेटो में, कोई सवाल नहीं. और जो देश और नेटो में गए हैं वहां ऑफेंसिव हथियार नहीं डिप्लॉय होंगे. आप मुझे रिटर्न गारंटी दीजिए, क्योंकि आप हमारा बेवकूफ बना चुके हैं एक बार 1991 में, जबकि मौखिक और वर्बल एश्योरेंसेस वर गिवन विच वर नॉट फॉलो. अब मेरे में वो ताकत है कि मैं आपकी यहां पे किरकिरी कर सकता हूं इस गिवन एरिया में. अमेरिकन ने पहले बोला हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल क्लियर, 16 तारीख को ये अटैक कर रहे हैं. तो उसने खूब नेगोशिएशंस करी. मतलब यू से यू हैव टू, इफ यू वांट टू शो दैट यू आर राइट. जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया, बोले साहब कि आखिरी चांस दो नेगोशिएशन कि साहब ये दे दो, वो दे दो, नहीं माना. 5 गांव दे दो, नहीं माना. तो फिर उसने बोला कि महाराज आप क्या रहे हैं, 5 गांव, सुई की नोक जैसी जमीन भी मैं नहीं दूंगा. तो उसने बोला अब युद्ध होगा. अब युद्ध जो होगा वो न्याय संगत होगा, पाप सारा तेरे सिर. सो दैट्स व्हाई यू सी दे डिड लॉट ऑफ नेगोशिएशन. मैक्रॉन विद पुतिन, बाइडन विद पुतिन, टॉक्स ऑन द टेलीफोन, एंड देन द जर्मन वाइस चांसलर, सब जगह बातचीत हुई. उनके फॉरेन मिनिस्टर से उसने पूछा कुछ टेलीवाइज्ड कुछ निकल सकता है? बोले नहीं साहब. पहले बोला कि साहब मुझे कोशिश करने दीजिए. उसने कर ले कोशिश. 1 हफ्ता और उसने कोशिश करी. जब कुछ नहीं निकला तो बोले साहब अब हमला होगा. अमेरिकन ने बोला 16 फरवरी को हमला होगा. उन्होंने 16 फरवरी को नहीं किया. बोले नहीं ये अब उसको भी छुपाना था कि भाई आई कांट टेल यू कि मैं इस दिन इस इतने घंटे इतने बजे मैं हमला कर रहा हूं. तो छुपाते छुपाते वो लेट हो गए. और लेट होने में एक नुकसान हुआ है. और जब आप कवर करेंगे प्लीज कवर करिए कि अभी जो स्प्रिंग थॉ होता है उसमें सड़कों की क्या हालत होती है. वो मेजर मड एंड जनरल विंटर ये खत्म कर दिया था जर्मनी की फौज को रूस के अंदर. तो ये क्या उसका अंदाज होता है. नेक्स्ट बेटा.
ये है यूक्रेनियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो ब्लू में है, और जो लाल एरोज हैं रूस में कहां से ये फौजें इनकी तरफ आई। जो यूक्रेनियन फौजें हैं वो ब्रिगेड ग्रुप्स में ऑपरेट करती हैं। उनके कई ब्रिगेड, एक एयरबोर्न ब्रिगेड जो कि बड़ी स्पेशल मानी जाती है, उसके अंदर तो साहब म्यूटनी हो गई, क्योंकि जो रूसी भाषी लोग हैं उनका दिल रूस की तरफ। तो ये हमको समझना जरूरी है। अभी हाल में पिछले साल म्यूटनी हुई है, उसको डिसबैंड किया गया है। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि ये इनकी डिप्लॉयमेंट थी। अब रूस की फौज में और यूक्रेन की फौज में साहब कोई समन्वय नहीं, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन अगर देखा जाए तो। ठीक है, 12,000 टैंक हैं रूस के पास, 2,500 टैंक हैं रशिया के पास, 30,000 आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स हैं रूस के पास, उसके पास 10,000 से भी कम थे। तो मतलब जिसमें भी देखे तोप खाना, ये उसमें सबसे बड़ी जो डिफरेंस था वो एयर पावर में। 1,500 फाइटर रूस के पास, और जो यूक्रेन के पास 150 से भी कम फाइटर थे। तो देयर वाज नो कंपैरिजन कि अगर लड़ाई होती और रूस पूरी ताकत इस्तेमाल करता तो बात खलास थी। अब जो निकल के आ रहा है, जो एफएसबी है, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने काफी गूफ अप किया। उन्होंने पुतिन को बताया कि साहब ये 2008 जैसे, ये 2014 जैसे लड़ाई नहीं करेंगे, दे विल नॉट फाइट, दे विल नॉट फाइट। और इन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट स्लाइड बेटा, अब ये है देखिए आपके हमले के, ये जो एरोज हैं दिखा रहे हैं कहां से हमला हुआ है। रूस ने 3 बड़ी दिशाओं से 24 फरवरी को सुबह ऐलाने जंग किया। ऐलाने जंग बंद हो गया है, लेकिन रूस के प्रेसिडेंट आए और बोले साहब हम इन्वेड कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। उसने कहा कि साहब हम जो है, हम मिलिट्री पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर देंगे यूक्रेन के, हम डीनाजिफिकेशन करेंगे। डीनाजिफिकेशन इज शॉर्ट हैंड फॉर रिजीम चेंज। हम तख्ता पलट कर देंगे और इनका जो लड़ने का पोटेंशियल है उसको तबाह करके आएंगे, उसके पहले हम बाहर नहीं निकलेंगे। ये है, और अभी भी ये चाहता है तो ये बोले कि ये यूक्रेन नहीं जाएगा, हमको दोनबास और ये को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे और क्रीमिया हमको दे दे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध शुरू। सो दे स्टार्टेड, उन्होंने पहला साइबर अटैक किया और जो सैटेलाइट लिंक्स थे उनको डाउन किया, जो सैटेलाइट लिंक्स थे उनको डाउन किया। फिर इनके बैंकिंग सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे काफी किया। यह भी याद रहे कि अमेरिका का पूरा CIA का सपोर्ट साइबर वॉर में यूक्रेन के साथ था, और शायद वो भारी पड़े हैं साइबर वॉर में। और इस चीज में बेटा उसको थोड़ा ऐसा कर दिया, इस चीज में और साइबर वॉर में भारी पड़े हैं। CIA के 2,40,000 साइबर वॉरियर्स, हैकर्स, वो रूस के खिलाफ डट गए हैं, और वो सारी दुनिया के मीडिया में रोज ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें डाल रहे हैं जिससे लगता है यूक्रेन जीत गया, अब मॉस्को गिरने वाला है। द इंप्रेशन व्हेन यू सी द मीडिया इंक्लूडिंग द इंडियन मीडिया, आज 4 टैंक उड़ा दिए। भाई जहां 12,000 टैंक है, 4 टैंकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने 18,000 सिविलियंस को हथियार दिए हैं। जो यूक्रेन की ब्यूटी क्वीन है उसने कलाशनिकोव राइफल पकड़ लिए। इस सब से सिविलियन जनता आबादी को असर पड़े, मुझे एज अ फौजी एनालिस्ट सिवाय हंसी आने के कुछ नहीं आता, क्योंकि कलाशनिकोव AK-47 राइफल साहब टैंक का कुछ नहीं करती, इट जस्ट पिंग्स ऑफ द टैंक आर्मर। तो आप अगर वो जो हथियार सिविलियंस को बांट रहे हैं, आप सिविलियंस का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सिविलियन की लड़ाई में प्रोटेक्शन ये है कि साहब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिविलियन ठहरा, आप मुझे मत मारो, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको हथियार दे दिए, नाउ ही इज लेजिटिमाइज्ड टू शूट। भाई हथियार के साथ था, नहीं था, मेरे को थोड़ी ना मैं वेट करूंगा कि जब मेरी आंख में मारे तब मैं इसको रिप्लाई करूंगा। और उससे टैंकों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उससे गुरिल्ला वॉरफेयर बाद में हो सकता है, जबकि पूरा हार हो जाए आपकी तफसील की। तो इन्होंने साइबर अटैक से स्टार्ट किया। 3 दिशाओं से यूक्रेन पे भारी हमले शुरू हुए। उत्तर से जो 41 आर्मी थी उसने बेलारूस से कीव की तरफ हमला किया, बाकी 2 आर्मीज ने खारकीव की तरफ हमला किया।
दो आर्मीज ने हमला किया डॉनबास रीजन, दोनेत्स्क और लुहांस्क में, और सबसे तेज एडवांस यहां हुए। पूरी दुनिया की जो अटेंशन है हैज बीन रिविटेड टू कई आज गया कल गया, अभी तक नहीं गया, हार गए। उसको पकड़ना था ये इलाका, उसने तफसील में पकड़ लिया है, क्योंकि ये वो वापस नहीं देगा। साउथ में क्रीमिया से निकलकर उसने मारियोपोल की तरफ हमला किया, ओडेसा के ऊपर वो उसने हमला किया है, और जो वहां पे खेरसॉन का जो शहर है उसको तो पकड़ ही लिया है। पूरे सी कोस्ट में सबसे तेज एडवांस उसका साउथ में हुआ, जबकि पूरी दुनिया की अटेंशन कहां थी? कई। उसने क्या किया? पहले दिन उसने धनाधन मिसाइल ठोके, 11 एयरफील्ड्स, 18 रडार स्टेशन, और जो उनकी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज थी S-300 बुक, हमारे पास आ रहा है S-400, वो S-300 बुक मिसाइल्स के ऊपर उसने ताबड़तोड़ हमले किए, जो उसको दिखे उसने डिस्ट्रॉय कर दिए। अमेरिकन परामर्श पे यूक्रेन ने एक चातुराई दिखाई थी, उसको पता था कि हम टिक तो सकते नहीं। उसने अपने कुछ हथियार, अपने कुछ जहाज रोमानिया भेज दिए बचाव के लिए, और बाकी वेस्टर्न यूक्रेन में ले गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर यहां रखे रहे बैटल एरिया में तो पहले दिन तबाह हो जाएंगे। जब इराक पे हमला किया था अमेरिका ने, 40 दिन की एयर बम्बार्डमेंट की थी साहब, 40 डेज ऑफ एयर बम्बार्डमेंट, ठीक है। जब युगोस्लाविया पे हमला किया था, 80 डेज ऑफ एयर बम्बार्डमेंट, उसके बाद उनकी ग्राउंड फौजें अंदर गई थी, उनको पता था कोई इनकी बचाव के लिए नहीं आएगा। यहां क्योंकि पुतिन कहता था कि ये मेरे स्लाव भाई हैं, और रिश्तेदारियां ऐसा, बेलारूस में आज एक बिटिया आई हुई थी यहां पे शादी पे, कल हमारे घर हो रही थी, तो वो कह रही थी कि मेरे रिलेशंस तो कई में हैं, मेरे रिलेशंस तो मॉस्को में हैं, दोनों हमारे तो सारे स्लाव लोग हैं। सो वो चाहता था कि ज्यादा जोर इनके खिलाफ ना लगाया जाए। सो जो पहले 2 दिन जो लड़ाई हुई, रशिया ने केवल 1 दिन का प्रेपरेटरी बम्बार्डमेंट किया। हमारी तरफ से कम 3-4 दिन का प्रेपरेटरी बम्बार्डमेंट होना चाहिए था, और रशियन डॉक्ट्रिन के मुताबिक होना चाहिए था। तो ज़ेकुबोवास्की जो उनके जनरल साहब थे, उन्होंने ये जो हाइब्रिड वॉर डॉक्ट्रिन क्रिएट करी कि साहब उससे ना अच्छा नहीं लगेगा कि हम इतने ताकतवर हैं और एक छोटे देश को हम बिल्कुल कुचल रहे हैं, इट विल नॉट गो डाउन वेल विद द वर्ल्ड मीडिया। तो उन्होंने क्या किया साहब, अपनी जो एयरबोर्न गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन है उसको उन्होंने आंतनोव एयरफील्ड पे लैंड किया, और वहां से निकल के, नॉर्मली तरीका ये होता, हमने कहा दिस वाज एग्जैक्टली एज पर आवर एंटिसिपेशन, कि उनके पैराट्रूपर्स आएंगे, एयरहेड्स पकड़ेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, ग्राउंड से लैंड लिंक अप टैंक्स आके करेंगे, फिर वो लोग मिलके मारेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वो वहां आए, आंतनोव एयरफील्ड पकड़ी, वो जो सबसे बड़ा दुनिया का एयरक्राफ्ट है आंतनोव 225, उसको उन्होंने उड़ा दिया, पर खच्चे उड़ा दिए उसके, और उसके बाद वो सीधा घुस गए हल्के लाइट BRDM हल्के टैंक लेके कीव के अंदर। उनको उम्मीद थी कि ये हमारे टैंक देख के हथियार डाल देंगे, लेकिन अमेरिका ने पिछले साल और इस साल उनको कोई 1 बिलियन से ज्यादा छोटे हथियार दिए। कौन से हथियार? उनको बोलते हैं जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि टैंक को उड़ा सकता है तो छोटा लेकिन टैंक को उड़ा सकता है, और स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि 3000 फुट तक अगर कोई जहाज आ रहा है तो उसको उड़ा सकता है, हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है, और वो थोक के हिसाब में दिए, मतलब भर दिया उनका अंबार इनसे। अब बात यह है साहब कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और सैम 7 से आप लड़ाई जीत नहीं सकते, आप लड़ाई को लंबा खींच सकते हो। यू कैनॉट विन विद डिफेंसिव वेपन, फॉर दैट यू नीड टैंक्स, यू नीड फाइटर जेट्स, यू नीड आर्टिलरी, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, वो हैं ऑफेंसिव वेपन जो कि जाके जमीन पकड़ेंगे। इनसे आप केवल डिले कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ डैमेज, यू कैन स्ट्रेच आउट द कैंपेन, बट यू कैनॉट विन द वॉर। मतलब पहले दिन से एक चीज जो ऑब्वियस थी कि कीव विल फॉल, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। होगा नहीं होगा ये सवाल में नहीं है, कब होगा केवल यही सवाल में। अब उन्होंने क्या किया साहब कि
जब वो पूरी दुनिया की अटेंशन, सॉरी जस्ट गो बैक वन, पूरी दुनिया की अटेंशन कीव पे वो कीव के ऊपर उन्होंने ला रखी थी, उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि यह सरेंडर नहीं कर रहे तो उन्होंने थोड़ा पॉज दिया, क्योंकि कीव 150 किलोमीटर है अंदर, तकरीबन वो 150 किलोमीटर अंदर आए थे। सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैल गया कि रूस हार गया, यूक्रेन जीत गया। अरे साहब, मेरा आपको कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई होती है और हमारे टैंक इस्लामाबाद के बाहर खड़े हैं तो किसको कहेंगे आप जीता, भारत को या पाकिस्तान को? पाकिस्तानी तो कहेंगे हम जीत गए, क्योंकि जब ढाका में भी उनका कैप्चर हो गया था, सरेंडर हो गया, तब भी कह रहे थे हम युद्ध जीत गए। तो वो दूसरी बात है, बट ध्यान यहां रखा। फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स कहां कैप्चर करने थे? डॉनबास में और साउथ में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि सैटेलाइट अमेरिकन देख रहे हैं, 65 किलोमीटर लंबी टैंकों की कॉन्वॉय वो कीव के पास लाके खड़ी कर दी, और सारी दुनिया आज कल परसों, इसको बोलते हैं डिसेप्शन। दुनिया का ध्यान, वो बोले मेक एन अपरोर इन द ईस्ट, स्ट्राइक इन द वेस्ट। मेरे को क्या चीज है जो मेरे को वापस नहीं करनी? डॉनबास, क्रीमिया, और जो कोस्टल एरिया मैं नहीं दूंगा वापस। सो लेट मी फर्स्ट गेट दैट, ये तो मेरे को खाली करना पड़ेगा, मैं ले भी लू। तो उन्होंने अब वो यहां पे किया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, हाँ, ये है देखिए दक्षिण का, और यहां पे देखिए ये है आपका मारियोपोल, ये है मेल्टियोपोल, ये है खेरसॉन, ये है क्रीमिया। यहां से हमले शुरू किए। अब देखो, ये खेरसॉन का शहर 3 लाख आबादी का शहर है, ये पूरा पकड़ लिया, यहां उनकी हार हो गई है, ठीक है साहब। यहां पे मेल्टियोपोल को घेर के उन्होंने तबाही कर दी है, तकरीबन पकड़ लिया है। मारियोपोल को घेर के वो उसकी कोई इमारत खड़ी नहीं छोड़ी है वहां पे। और फिर ये लैंड लिंक कर लिया है साहब डॉनबास से, क्योंकि क्रीमिया को बाई सी सप्लाई करना पड़ता था, और जो पानी यूक्रेन से जाता था क्रीमिया को, उन्होंने उस पर बांध लगा दिया था। वो बांध को इन्होंने तोड़ दिया, पानी इधर से आ रहा है, और ये लैंड लिंक अप हो गया है साउथ में डॉनबास से। दे हैव मेड दैट लिंक अप। मतलब अब उनको समुद्र के रास्ते कोई दूसरी नेवी आके भी इंटरफेयर करे तो ये दे कैन कीप क्रीमिया सप्लाई। दे वांटेड दिस लैंड लिंक, दे हैव गॉट द लैंड लिंक। अब साहब नेक्स्ट बेटा, अगले चलिए। दुनिया पे क्या असर पड़ा लड़ाई शुरू होने के पहले? दिस इज द प्राइस ऑफ ऑयल। ये देखिए कहां जा रही है, $70 $80 पर बैरल से साहब आज के दिन $130 प्रति बैरल ये है, और अगर कुछ दिन और खिंचा तो 150 बैरल पे जाएगी। बाइडेन साहब ने फोन उठाया, सऊदी किंग जो थे और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर बड़े दोस्त थे ट्रंप के, तो जो ट्रंप का दोस्त था उसको काफी बैड वाइब्स मिलनी शुरू हुई, गाली गलौज मिलना शुरू हुआ बाइडेन साहब से। तो उन्होंने जब फोन उठाया सऊदी अरेबिया को बोलने के लिए कि तुम तेल का उत्पादन बढ़ाओ, यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड यू गेट द प्राइसेस डाउन, उसने फोन लेने से मना कर दिया। भाई मेरे को भी तो पैसा बनाना है, अब मैं आपके कहने पे व्हाई शुड आई सफर अ लॉस? सीधी बात। गैस prices up and up and up, and then I will tell you the prices of gold, the prices of wheat, the prices of silver, the prices of so many essential commodities are going up and up. Ukraine is a storehouse of minerals. Uranium वहां पे है, टाइटेनियम वहां पे है, बहुत सारे जो है, एक जो अभी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल हो रहा है वो भी लिथियम, वो भी वहां पे बहुत उसकी है वहां पे। ये सब की प्राइसें आसमान पे चढ़नी शुरू हो गई है। सारी दुनिया इंक्लूडिंग भारत, हमारी इकोनॉमी कोविड से उभर कर ऊपर आ रही थी। वी वर नाउ रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। जो हमारा रीसेंट बजट है उसकी जो बेस लाइन अजम्पशन थी कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑयल स्टेज एट $70 a barrel, we will have 8% GDP growth in the coming year. अब हमारा बजट की साहब ऐसी तैसी होगी, ना सिर्फ हमारे की, पूरी दुनिया भर के। मतलब the longer this war lasts, the more the world will suffer.
यूक्रेन की तो तबाही निश्चित है, हो ही गई है। उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट सारे पकड़ लिए क्योंकि उनको शक था कि ये फिसाइल मटेरियल डाइवर्ट कर रहे हैं चेरनोबिल में डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए, और जो आपका वो जो 6 प्लांट्स की जगह है चेरनोबिल के पास नहीं नीचे में मिडिल यूक्रेन में जो है, एक ए से नाम है और एक के से नाम है खा के जेनिया में, एनीवे वो वहां पे 6 प्लांट्स है न्यूक्लियर 950 मेगावाट्स के, और वो जाके उन्होंने पकड़ लिया कि अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकते। अब साहब सबसे बड़ा खुलासा मैं आपके सामने फिर कर रहा हूं, अब तो मैंने 3-4 दिन पहले किया था, मैं लेट मी रिपीट इट हियर टुडे फॉर यू। अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डार्पा, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, हैड फंडेड, पहली खबर थी 7 बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरीज इन यूक्रेन, 7। अब जो खबर आ रही है 32, और क्या बना रहे थे? प्लेग वायरस, एंथ्रेक्स वायरस। वन वॉज स्पेशलाइजिंग इन कोरोना, बैट कोरोना वायरस फॉर कोविड। और एक अटकल तो यह है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया में कोविड का अमेरिका का हुआ है क्योंकि वो चीन की देन है। दूसरा नुकसान भारतवर्ष का हो गया, हमको भी चीन की देन है। रूस का क्यों इतना नुकसान हुआ? वाई शुड द चाइनीज इन्फेक्ट रशिया विच इज देयर फ्रेंड? अटकल ये लग रही है कि साहब ये तो इधर से गया यूक्रेन से, क्योंकि जो चमगादड़ यूक्रेन में है वही चमगादड़ रूस में है। सो अगर यहां पे आपको रिसर्च करनी है कि भाई रशिया को कैसे बीमार करना है, तो आपके लिए बेस्ट जगह है यूक्रेन। एंड यूक्रेन वांटेड टू, हाँ साहब मेरी टेरिटरी, रेंट माई टेरिटरी फॉर एनीबडी जो रूस का नुकसान करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान करता है। जिसको भारत के खिलाफ कुछ करना है इधर आके करो, ये मेरी जमीन बिकाऊ रेंट के लिए। तो साहब अगर आप अपनी जमीन बिकाऊ करें दूसरे की आबादी में बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए, और शायद न्यूक्लियर वॉरफेयर करने के लिए, और हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने के लिए, तो द अदर पर्सन इज जस्टिफाइड इफ ही गिव्स इट बैक टू यू। ये मेरी एज अ मिलिट्री एनालिस्ट ये मेरी सोच है। तो उन्होंने ये पकड़ लिए। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द फोरकास्ट? बोले साहब वो सब ठीक है, एक बार स्टिक योर नेक आउट एंड एज अ मिलिट्री एनालिस्ट अगेन मेक अ फोरकास्ट। देखिए सारी इकोनॉमिक सैंक्शन लग चुकी, दे फेल टू डिटर पुतिन। उसने हमला कर ही दिया, उसको पता था लगेगी, उसने फिर भी कर दिया। फिर आप सैंक्शंस को बढ़ाते गए। अब सैंक्शंस इतनी खतरनाक हो गई हैं कि अभी तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 6, 8, 9 महीने डाउन द लाइन असर पड़ेगा। रूस ने, पुतिन ने एक बड़ी अलग सी धमकी दी। उसने बोला यू आर वेजिंग इकोनॉमिक वॉरफेयर अगेंस्ट अस। और अगर दुनिया सोचती है कि जैसे 1999 में मैं चुपचाप से डूब जाऊंगा, मैं आवाज नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, बस मैं मर जाऊंगा, तो क्यों मरेगा साहब? जिसके पास 6300 एटॉमिक हथियार है वो बोलेगा यार मरता क्या ना करता, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है साहब, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। क्योंकि जब हम वॉर गेम करते थे पाकिस्तान के साथ, तो वी यूज्ड टू से यार इसको इतना मत धकेलो कि ये घबरा के, जब जान पे बना है तो कोई भी घबरा के जो अपना ब्रह्मास्त्र है इस्तेमाल कर देगा। अश्वत्थामा ने भी तो कर दिया था ना ब्रह्मास्त्र, जब उसकी जान पे पड़ी। तो उसकी जान मत थ्रेटन करो, नहीं तो वो कर देगा इस्तेमाल। अब आप जान फिर थ्रेटन कर रहे हैं, फिर बोलेंगे साहब नहीं ये कुछ नहीं करेगा साहब, ये चुपचाप मर जाएगा क्योंकि हम इतने अच्छे हैं। माय ब्लडी फुट। अब दुनिया में धीरे धीरे ये चेतना आ रही है साहब कि हम तो न्यूक्लियर आर्मागेडोन के हर रोज नजदीक पहुंच रहे हैं। और जो आप खुश हो रहे हो, दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि साहब जो है पुतिन हार रहा है, फिर आप कह रहे हो पुतिन पागल है, उसकी मेंटल स्टेट पे शक है हमको, फिर आप उसको न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल रहे हो। उसने अपने न्यूक्लियर अलर्ट पे डाल दिया। उसने कहा तुम समझते हैं मैं नहीं करूंगा, तुमने कहा था मैं हमला नहीं करूंगा, मैंने कर दिया। नाउ व्हाट डू यू वांट टू सी? अब
पीपल आर इन डैमेज कंट्रोल। बाइडेन ने बोला नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। जेलेंस्की साहब को पूरी उम्मीद थी कि पूरी एक्सरसाइज हमारी पिछले साल हुई थी, ये आएंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके, कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड। नेटो ने मना कर दिया, इसने मना कर दिया। फिर जेलेंस्की साहब ने बोला नो फ्लाई जोन लगा दो साहब, आपकी एयरफोर्स आके हस्तक्षेप करे। बाइडेन साहब ने बोल दिया नहीं साहब हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट रशिया और अमेरिका की फाइट हुई तो ये न्यूक्लियर वॉर निश्चित है। नेटो ने बोल दिया डायरेक्ट रशिया और उसकी फाइट हुई हमारी तो न्यूक्लियर वॉर निश्चित है। फिर बोला साहब थोड़ी सी चालाकी की जाए, यूरोपियन यूनियन में शामिल कर दिया जाए। आज और कल की जरा स्टेटमेंट्स देख लीजिए, बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करता ये इसके लिए। तो मतलब आपने यूक्रेन को उकसाया, लड़ जा बेटा, हम है ना तेरे साथ, और उसको पिटने के लिए छोड़ दिया। दिस इज इमोरल। यू हैव एनकरेज्ड, you have abetted Ukraine to fight with Russia, totally unequal fight, and when the fight has started, you have left it on its own. Your plan is to fight Russia to the last Ukrainian, कि हम आखिरी यूक्रेनियन तक जब तक ना मर जाए हम सब रूस से लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन आखिरी यूक्रेनियन को मरवा के छोड़ेंगे। अब अकलमंदी जेलेंस्की साहब के लिए इसमें है कि अपने देश की तबाही ना कराएं। अपने देश की नहीं, बहादुरी बहुत है। मैं आई गिव फुल क्रेडिट टू द यूक्रेनियन सोल्जर्स, दे हैव फॉट इट आउट, दे फॉट इट आउट वेरी हीरोइकली। बट व्हाट इज द एंड रिजल्ट, व्हाट इज द एंड गेम? वो सिर्फ आपको कह रहा है कि आप अपनी, नाउ रशिया हैज चेंज्ड इट्स स्ट्रैटेजी। वो कह रहा है कि उसके जो मैंने फ्रॉम क्विक अटैक स्ट्रैटेजी, मेरे को जल्दी क्या है? वो बोलते ना इतनी जल्दी क्या है जाने की, मेरे को जल्दी क्या है? ना अमेरिका आ रहा है, ना नेटो आ रहा है। आई कैन टेक माई टाइम एंड डिस्ट्रॉय दैम कॉम्प्रिहेंसिवली, लुत्फ लेके मारूं। और साथ साथ आई विल ट्राई टू थिंग, आई विल पुट काइनेटिक मिलिटरी प्रेशर एंड देन आई विल पुट साइकोलॉजिकल प्रेशर बाय होल्डिंग टॉक्स। आज पुतिन की स्टेटमेंट आई है कि मुझे लगता है ये टॉक्स बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। और यूक्रेन के जेलेंस्की साहब ने कहा है हम भिखमंगे नहीं हैं, हम भीख मांग के नेटो में नहीं जाएंगे। अरे साहब 10-15 क्या 18 दिन पहले कह देते तो क्या ये होता? इफ यू आर सेइंग दिस नाउ, व्हाई कुडंट यू से दिस 20 days बैक? नंबर 1, वो कह रहा है आई एम प्रिपेयर्ड टू डिस्कस डॉनबास, आई एम प्रिपेयर्ड टू डिस्कस क्रीमिया। अरे मेरे शेर, ये आपने बोल दिया होता 20 दिन पहले तो क्या हजारों लोग मरते? क्या दुनिया न्यूक्लियर युद्ध की कगार पे आती? नाउ हमारा स्टांस ये है कि अब जो भी हथियार, वो कह रहे हैं हम हथियार देंगे तेरे को, तू लड़ेगा शेर, तू हार मत मानियो। क्या हथियार देंगे? जेवलिन और सैम 7। जो मैंने बताया वो केवल लड़ाई लंबी खींच सकते हैं। लगता है अमेरिका और नेटो की चाहत है और दे वांट टू एक्सटेंड द वॉर फॉर अ फ्यू मंथ्स इफ नॉट टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। साहब, दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू आवर इकोनॉमी एंड टू द ग्लोबल इकोनॉमी। दिस वॉर हैज टू स्टॉप एंड टुडे इफ पॉसिबल दिस वॉर हैज टू स्टॉप। ठीक है, यूक्रेन तो तबाह हो ही गया है, अब दुनिया की इकोनॉमी की तबाही और हमारी इकोनॉमिक रिकवरी। रूस ने हमारी बहुत मदद करी थी 71 के जंग में और मैंने उसमें हिस्सा लिया है। अब मुझे मालूम है कितनी मदद की थी, लेकिन हमको वो एक चीज बार बार बोलते आए, भैया जल्दी कर लो यार, खत्म करो। हम ज्यादा देर सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो नहीं कर सकते, भाई कोई लिमिट है। अब जनरल असेंबली में बात पहुंच गई है तो आप जल्दी खत्म करो। हमने भी रूस का सहयोग दिया है, अब वी हैव रिटर्न द फेवर, बट हम भी उनको आज ये कह रहे हैं भैया जल्दी खत्म कर लो मेरे दोस्त, इसको जल्दी खत्म कर लीजिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी में खतरा है। तो इसके साथ कह के आई वुड लाइक टू एंड विद अ प्रेयर एंड आफ्टर एम्बेसडर साहब हैज स्पोकन आई वुड रिक्वेस्ट आवर पोएट हियर Virendra Saab to recite a poem for peace in Ukraine. It is in the interest of mankind. Ambassador Saab, over to you. नमस्कार। मुझे आज सौभाग्य है कि इस
सेमिनार के लिए बुलाया गया और खासकर मेजर जनरल बख्शी, जिसका कि मैं शुरू से एडमायर रहा हूं, उनके साथ शेयर करने का ये प्लेटफॉर्म। यूक्रेन की स्थिति बहुत दयनीय है, इसका तो कहने की जरूरत नहीं है। और ये जो शुरुआत अब हुई है, ये शुरुआत अभी नहीं हुई है, शुरुआत शुरू से ही हुई है। मैं 25 साल पहले यहां से पहले गया था 97 में एज एम्बेसडर। 1997 से 2002 तक मैं वहां पर एम्बेसडर रहा हूं और वो बड़े मुश्किल दिन थे क्योंकि 91 में ही उनको इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस का टाइम 6-7 साल का होता है और उनको पता भी नहीं था कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। जब वो बढ़ रहे थे उसी वक्त ही यूरोप और अमेरिका ने कहा कि इस वक्त तो इनका वल्नरेबल मोमेंट है रशिया का, क्योंकि वो ब्रेकअप हो रहा है उनका वार्सो पैक्ट का, तो अब इनको और बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। और सबसे चीज जो उनको पता लगी कि सबसे सॉफ्ट अंडरबेली रशिया की है वो यूक्रेन में है और उस यूक्रेन की सॉफ्ट अंडरबेली को उन्होंने अभी से उकसाना शुरू किया 93 में। और कैसे किया? और ये भी मेरे विचार में यूक्रेनियन इतने नाइव थे कि उनकी बातों में मान गए। क्या कहा उन्होंने? आप हमारे साथ योगदान कीजिए, आप हमारी मदद करिए। सबसे पहले उन्होंने कहा वहां पर यूक्रेनियन न्यूक्लियर साइलोज उनके पास दे इनहेरिटेड, क्योंकि वहां पर ये बेस थे। उन्होंने कहा आप इनको डिस्ट्रॉय करिए, डिसमेंटल करिए, हर साल हम आपको ग्रांट देंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि उनको इस प्रकार के जैसे अफीम खिलाई कि बेटा आप अगर अच्छा करोगे हम आपको और अफीम खिलाएंगे। तो जो सिस्टम ऑफ इंटॉक्सिकेशन वो उस वक्त शुरू हुआ। हर चीज आपको आसान से आ रही है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ कुछ डिसीजन लेनी है जो कि रशिया को अल्टीमेटली बिल्कुल ही कमजोर कर दे। उस वक्त से शुरू बात हुई। तो मिसाइल साइलोज को ब्रेकअप किया और उस ब्रेकअप के लिए उन्होंने एक और चीज की, वो हिंदुस्तान के लिए, और आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि जब हमारा 98 में हमारा जो हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड फ्यू कंट्रीज which came out condemnation of India. The word they used was condemn India's testing. क्यों किया? अपने लिए नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को खुश करने के लिए। और मैंने इसके लिए काफी लड़ाई झगड़ा किया, उनसे मीडिया में खुद गया वहां पर, और मैं उनके प्रधानमंत्री से भी मिला, उनके मंत्रियों से भी मिला। कहते देखिए, हमने अगर अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर रहे हैं तो हम आपको दूसरों को क्यों अलाउ करें कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए। ये कहा गया। वो अपने आप नहीं कहना चाहते थे, लेकिन जस्टिफिकेशन में कहना चाहते थे। तो उस वक्त हमको भी बड़ा अच्छा नहीं लगा कि आपने हमारी सिचुएशन को पहचानी नहीं। आपकी सिचुएशन दूसरी है, लेकिन उस वक्त वो बिकाऊ थे। अब बिकाऊ होने के लिए वो कुछ भी चीज कर सकते थे खुश करने के लिए। एक ये चीज उन्होंने शुरुआत की। दूसरा जो उन्होंने काम किया, एंड मैं जनरल साहब ने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया तो उसको रिपीट करने का मेरे ख्याल कोई इरादा नहीं है। मेरा सिर्फ जो बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज उसके बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने फिर क्या किया कि उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जनरल साहब आप मुझसे एग्री करेंगे कि सबसे पावरफुल लॉबी इज इन द यूएस एंड यूरोप, एंड दे फाइंड कि अभी तो मौका कम हो रहा है, जैसे जैसे टेंशन खत्म होगी उनके बिजनेस खत्म हो जाएंगे। इराक वॉर खत्म हो गई, कुवैत की प्रॉब्लम खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई। अब वो नई चीज क्या लाए? तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त इस लड़ाई झगड़े के अंदर रोल ऑफ MIC, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, को इतना ज्यादा उभारा नहीं जा रहा, क्योंकि इट अफेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो जिस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं इन इन यूक्रेन एंड रशिया, इनकी भी एक लॉबी है। जितने भी ओलिगार्क्स हैं, जितने भी बिग बिजनेसमैन हैं, दे आर नाउ कॉल्ड प्राइवेट बिजनेसमैन, बट दे आर रियली फंडिंग एवरीथिंग फॉर द पॉलिटिकल सेटअप इन बोथ द कंट्रीज। तो जो MIC कॉम्प्लेक्स, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो भी उनको एनकरेज करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, आपकी फैक्ट्रीज, आर्म्स फैक्ट्रीज के लिए ऑर्डर नहीं है, कहीं ना कहीं से ऑर्डर लेके आइए। पाकिस्तान एंटर्स सीट एंड दे ऑर्डर्ड 320
T-80UD tanks. This is when I was posted in 96, 97, and they started supplying, and I was the one who went and protested against it. कहते हैं एम्बेसडर साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? उनको चाहिए हमारे पास देखिए भूखे मर रहे हैं हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले, उनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है. अगर हमारे पास कोई जॉब आ रहा है ताकि हमारी फैक्ट्री चल सकें तो अच्छी बात नहीं है क्या? ऐसा कर सकते हैं. अभी तो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, आप हमसे ऑर्डर करिए. आप रशिया से ऑर्डर कर रहे हो, सब चीज रशिया की बस क्यों जाए? क्योंकि जब रूस के जमाने में भी यूक्रेन से काफी माल जाता था, असबाब जाता था, और फैक्ट्रीज से भी अभी जाता था. लेकिन उनका सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या था कि सभी चीज इंटीग्रेटेड एक जगह नहीं होनी चाहिए, उनको डिस्पर्स करना चाहिए. उनको दूसरे स्टेट्स में एक चीज के बाद यहां से सप्लाई आएगा, वो वहां से सप्लाई आएगा, आप कंट्रोल करेंगे उसको इंटीग्रेट करने का. ये चीज था उनका सोवियत सिस्टम का कि हर एक चीज में एक टैंक बनेगा, एक कंट्री में नहीं बनेगा. एंड टैंक सबसे ज्यादा आपने तो इसको बेटर एनालाइज किया है. खारकोव की क्या इतनी इंपॉर्टेंस है? खारकोव इज द टैंक प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री. जितनी भी टैंक्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास गए हैं 320, उसके अलावा और भी उन्होंने ऑफर किया है. ये सारे वहां से जा रहे हैं. दूसरा जो चीज लोगों को अभी भी नहीं पता है कि जितने भी डिजाइन ब्यूरो हैं यूक्रेन में है, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैक्ट्रीज हैं ये यूक्रेन में है. क्योंकि यूक्रेन के पास ब्रेन पावर ज्यादा था. उनके पास एक तो चीज ये थी कि वो एग्रीकल्चरल ब्रेड बास्केट थे, बिकॉज 54 मिलियन टन के जो फूड ग्रेन्स होते थे. एक ये, बट उनके पास ऑल्सो जितने भी मिनरल्स है, जनरल साहब ने उसका जिक्र किया था, जितने भी मिनरल्स, माइंस वगैरह सब यूक्रेन में है. इसीलिए इंडस्ट्रियल यूनिट भी वहां पर ही कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है. दूसरी कंट्रीज में इतना ज्यादा, जितने भी 16 कंट्रीज जो थी फॉर्मर सोवियत यूनियन की, उसमें सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री ये था. ब्रेन पावर इनके पास है. रिसर्च सेंटर क्या है मीर के पास, अभी भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च करते हैं वो सब यूक्रेन में होते हैं और रशिया उनसे लेता है. तो इसीलिए जब इन्होंने खार्किव को कैप्चर किया, मेन थिंग इज कि जितने भी इनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है फॉर मिलिट्री आर्मामेंट वो खत्म करनी है. और उसके बाद अगर बनाएंगे दोबारा से, इनको दोबारा से करना पड़ेगा. तो इस तरह की चीजें जब हुई, जब मैंने गया, उन्होंने कहा कि भाई ये आप समझ नहीं रहे हैं कि ये रोग नेशन है पाकिस्तान, आप पीसफुल नेशन है, आप इनको क्यों सप्लाई कर रहे हैं? तो उन्होंने यही कहा कि आप हमको दीजिए, आप हमसे ऑर्डर दीजिए, हम आपको चीज कर देंगे जो आपको हैरान हो. तीसरी चीज जो मैंने वहां पर देखी कि हमारी जो स्पेयर पार्ट्स हमारे ऑफ strategic armament which came from Russia, they are being also based in Ukraine. So Russia was trying to become difficult to supply those parts except at an enhanced pricing. So अगर उसमें क्या करते थे, वो सप्लाई वहां से, ऑर्डर हमारा रशिया के पास जाता था, सप्लाई यहां से यूक्रेन से होती है. ये चीज मैंने देखी. और देखी कैसे, हमारे बड़ी स्मार्ट मिलिट्री अटैचे, एयर एडवाइजर, वेरी स्मार्ट. तो मैंने कहा सर देखिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन ये है कि ये कुछ सप्लाइयाँ हिंदुस्तान को इतनी इजीली नहीं मिल रही है, इस दाम में मिल रही हैं. तो आप अपने जाके देखिए, अपने सोर्सेज में जाके देखिए कि हम डायरेक्टली कैसे सप्लाई कर सकें. एंड बिलीव इट और नॉट जनरल साहब, वी स्टक गोल्ड. माई मिलिट्री एडवाइजर एंड एयर एडवाइजर found direct links to those factories, and they started initial work for direct supply instead of going through Russia. अच्छा, वो चल गया शुरू, और we were so happy. इसका ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं आज, क्योंकि ये हमारे फैक्टर में इनको रिलेवेंट नहीं हुआ. तो जब ये शुरू हुआ, नो टाइम रशिया गॉट द विंड कि भाई ये तो हमको बाईपास कर रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे, उसके अलावा वो हमको इतने रिड्यूस दाम से सप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास तो वो आएंगे ही नहीं, और हमारे पास कम हो जाएगा.
उस वक्त उन्होंने उनका आर्म ट्विस्टिंग कर दी। उन्होंने कहा तुम क्या बकवास कर रहे हो यार, आप डायरेक्टली उनको भेज रहे हो रिड्यूस दाम में, आपको भी नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, क्यों कर रहे हो? आफ्टर सम टाइम दे टर्न द टैप ऑफ। सो ये चीजें मैंने आज से 20-25 साल पहले देखी। और उसके अलावा उन्होंने जो यूरोपियन से उनको खुश करने के लिए उन्होंने दो चीज और की विच आर अगेंस्ट इंडिया। यूएन में took a stance against us on J&K issue. So जब मैं उनके पास जाता था, उनके आदमी इतने अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी, since we are talking in a political form, so I will not talk much about that, but except कि उनकी जो सिस्टम जो है, we talk about Indian system, but their system, there is no system. Corruption is rampant and oligarchs are still running the show. Oligarchs, who are the oligarchs? Oligarchs are the former KGB generals who have continued to control the levers of power on one side and also business. And do you know something? Money is going out, is being siphoned out. You will be surprised that the one of the countries, Cyprus, which is not very far from that, it receives the maximum amount of investment from Ukraine. What is there in Cyprus? So ये जो साइफनी का हो रहा है, उसके बाद फिर उसका all over the world, how the oligarchs do things, that is also become very clearer. So basically therefore वहाँ का जो सिस्टम है इतना करप्ट था कि वो कोई भी चीज, अभी शुरू तो सिर्फ ओलिगार्क्स जो थे, जनरल थे, फॉर्मर KGB of Soviet Union, some of them who originated from Ukraine, they are the ones who were benefiting from that. So रशिया में उधर कर रहे थे, और इनका मीटिंग पॉइंट जनरल साहब वाज ओडिशा. Would you believe they इनके no I'm talking ओडिशा. क्या था कि जो इनके all the former KGB generals, they used to have a headquarters there in Odessa, where they used to meet time to time. It's just like in Godfather. You know, all the people who are behind these kind of games, they have a system, all the mafias. So mafia headquarters used to be, sir, Odessa, till recently, till about 5-10 years back. That is the importance of Odessa also from that angle. So therefore, what Ukraine was being done was they were being fed with these kind of palliatives, you can call it, या अफीम कहिए या जो ड्रग्स कहिए, उनको दिए जा रहे हैं, उनको फ्री मिल रही है, और they are on high, and they were ready to do whatever they were asked to do. And this was one of the indirect way of also hurting us in India. I'm basically concentrating because you have a global vision, and I would like to go from how it affects India, and how it will affect. You have very rightly pointed out कि इसका सबसे ज्यादा economic fallout will be on India. So to go back to this question of why is it that the Ukrainians are not doing anything for themselves, because they have been led to the garden path. They have been told. Again, the application for NATO membership was made during my time there 25 years back. Membership of the European Union was promised to them at that time. They said, you do not qualify at this present moment. Why you do not qualify? Because you do not have stringent controls. Because they are at the border, and so unless and until you have rigid borders, there is crossing going on, smuggling going on, all kind of undesirable things are happening. Your tax system is not in position. There is no discipline in doing anything in terms of the system, as it were. So until and unless you improve your system, and it will take time, you do not introduce the system and immediately from tomorrow things start happening. So this is when they were given to the garden path by saying these two things will be gone. 25 years, where have they gone? What has been done to, even once they have been taken? Yeah, the only thing they did was,
instead of full membership of NATO, they became an associate members where they can give you some advice and you have access to their data or whatever. So that is nothing. They're not leading them to anything. And NATO is out of the question for them. And it should not be even tried, but they tried. I mean, the Americans or the Europeans. So the other thing I would like to say, even though right now it's a NATO thing, but actually it's a US thing. The Europeans are divided. I think you would agree with me. They are going along with the Americans and with the NATO, but their heart is not into it. At least 2 or 3 countries I know, they have their own reason. It's somebody else's fight. It's America who wants to dominate. We have no global ambition. Why do you make us a part of it? But they dare not say anything openly. Otherwise, it will go against the solidarity and unity concept. So these are the issues which at that particular time, but ever since then, things have started changing, and we were again saying, sir, we have interest in you because we have found an alternative source now that Russia was not allowing earlier, but now you're independent from Russia. Let's have a defense cooperation. Defense cooperation in areas where we are interested. And believe it or not, I can't talk about openly, but we have R&D cooperation with them. You know, sir, let me tell you, our MiGs and Antonov would be sent every 3 months for refit, upgradation, and all the things that are required to be done. AN-32. That's the main thing what I'm telling you. So these people do not, therefore for us it's very important that Ukraine does not collapse, because we have an alternative supply, alternative areas. Russia tries to do something, we can at least go and start working on an alternative, because we can't possibly for all time to come be dependent on only one source. So here is another source, and basically they are simple people, but they have been led to the garden path. Frankly speaking, as General said, they're gullible, they want things to be easy. Let me also say that they have a comparatively different democratic system, better than Russia's. They still go through the exercise of free election and presidents being replaced. Think of Russia. This guy has gone, I don't know how long he's going to go. 22 years and going. Still going strong. So basically, nice people to people, you cannot find a better friend. Really good friend. I have a personal experience. I have visited all the regions of Ukraine. There is not one single region where there is no Indo-Ukrainian Cultural Society. And it is not funded by ICCR or Government of India, Ministry of External Affairs. It's self-funded by local people. And they come, there are Shanti Club, there is इतने सारे हर जगह वहाँ मैं जाता हूँ, मेरा इतना ऑनर मिलता था क्योंकि वो जेन्युइनली हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही बिलीव करते हैं. वो तो कहते हैं आप हमारे एंसेस्टर्स एक ही थे. लैंग्वेज लिंक बताते हैं. देयर इज लिंग्विस्टिक लिंक्स. तो वही उनका प्यार हिंदुस्तान के प्रति इतना ज्यादा है और हर जगह आप जाएंगे. एक अभी भी देखिए 50 साल बाद किसी भी फंक्शन में जाऊंगा, जूता है जापानी का तो गाना आएगा, गाना गाएगा ही. राज कपूर का नाम अभी भी है इतना ज्यादा. और सबसे आपको हैरानी होगी कि आफ्टर राज कपूर हु इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर हीरो? कैन यू गिव मी अ नेम? मिथुन चक्रवर्ती. वो जो उनका डिस्को डांसर का जो अभी लोग बाग अभी भी उस डांस में इतने फिदा हो जाते हैं. उनका हिंदुस्तानियों के प्रति बहुत ही सद्भावना है, बहुत प्यार है. वो और आना चाहते हैं. आप देखेंगे कितने लड़के वहां की लड़कियों से मैरी करके यहाँ आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं. उनके दिल में बहुत ही अच्छी सद्भावना है. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में इतना कम है नहीं है, तो मतलब उनका झुकाव कम है. तो हमें यूक्रेन को भूलना नहीं चाहिए. इस वक्त बहुत मुश्किलात से जा रहे हैं. रशिया को तो हम भूल ही नहीं सकते. और जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जो मदद एट वाइटल टाइम्स जो रशिया ने दी है वो और कोई कंट्री नहीं कर सकता. एट द सेम टाइम
यूक्रेन का भी अपना अलग है और उसके अंदर स्ट्रेंथ है, आएंगी वो बाहर, निकल के आएंगी। हमारे इस वक्त आप देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतना विकसित हो गया है। जब मैं गया था वहां पर 1 बिलियन सिर्फ डॉलर्स का एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल का है। 35 फार्मा कंपनीज हमारी वहां पर अपनी फैक्ट्रियां बना के बैठी हुई हैं। तो इतना अच्छा आपको मिल रहा है। उसके अलावा आजकल तो आई थिंक कुकिंग ऑयल भी बहुत अच्छा आ रहा है वहां से, सुना है। उनके पास जो सनफ्लावर ऑयल है बहुत ज्यादा है, हाँ वो आ रहा है। पहले तो हमारे पास सिर्फ पाम ऑयल ही आया करता था, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव, वो उसके बारे में मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं कहूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा चीज है जो डिफेंस कोऑपरेशन में, R&D एफर्ट में, एंड they have brain powers. The problem is they have excellent brain power. They do not know how to export, how to utilize. So one thing which I suggest to them, you please pool our resources with us. We will provide you the marketing skill. You cannot find better marketing skills than India, but you have inherent strength in this sector which had been neglected by us in the past. Let's marry together the two. We can even go to third countries and provide those facilities. So that is the other area which we cannot ignore Ukraine about. रशिया के साथ तो रहेंगे ही, लेकिन यहां पर भी यही है। तो मेरे विचार में, जैसे जनरल साहब ने कहा कि लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो जाए बहुत ही अच्छी बात होगी सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए, वहां के लोगों के लिए तो होगी ही होगी, क्योंकि उनको इतना सफर नहीं करना चाहिए था। देखिए उनकी सोसाइटी भी क्या है, जो ईस्टर्न साइड पे है, आप होगे हैरान, 30 to 40% of families are combined, are mixed. Either husband is Ukrainian, wife Russian, either way. So इनको देखिए, और एक चीज और देखिए, एक अमेरिका ने, यूरोप ने एक चीज उनके गलत दिमाग में और डाल दी है कि साहब अपने आइडेंटिटी बनाओ, डिफरेंट बनाओ, रशिया से डिफरेंट बनाओ, अपनी भाषा बनाओ। जितना आप कम रशियन भाषा पे डिपेंड करोगे वही अच्छा होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, आप अपना दूसरी भाषा बनाई कि जैसे यूक्रेन में अब 2 भाषाएं हैं, रशियन और यूक्रेन। उसमें क्या डिफरेंस करेंगे आप, कुछ वर्ड्स रशिया से लीजिए, कुछ वर्ड आप वेस्टर्न कंट्री के बॉर्डरिंग के स्टेट्स हैं जैसे पोलैंड वर्ड, पोलिश वर्ड, चेक वर्ड, रोमानियन वर्ड, उन दोनों को मिला के आप एक लैंग्वेज, आप अपनी खुद भाषा बनाइए और उनको कहिए कि ये यूक्रेनियन भाषा ही रशियन है। 60% अभी भी रशियन से ही आएंगे, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट आईडी बनाइए। अब देखिए कीव की स्पेलिंग आप कई कंफ्यूज होंगे कि कई जगह KIEV इंग्लिश स्पेलिंग है, और उन्होंने यूक्रेनियन स्पेलिंग कर दी KYIV। अब आप लुहांस्क की बात कर रहे थे, LUGANSK is the English word. Luhansk is Ukrainian. To bringing the small element, it's a very insignificant one, but they want to plant the idea in every mind. You're different. Don't depend so much, identify so much with the Russian system. Get out of it, break the old past, have a new beginning. You have a partner who is willing to bankroll, help you come up on your own, but they will not come up because they are like Siamese twins, conjoined twins. They cannot do without each other separately. They have to have some system whereby they still maintain, because geography has put them together. If you think that you can totally identify it away from them or put a cement block and then think differently, it's not going to happen. And it's not practical, it's not doable, and it's only help to the advantage of other outside forces who will make the maximum out of it. So I think they basically, this is my point. That, if there are any questions on which you want clarification, I'll be very happy to give. Thank you very much, sir. Let me, since you're talking about the gas pipe, you would have, of course, observed it much before. During my time, the gas pipeline supply
to Germany used to be through Ukraine. And it used to be going Ukraine, and Ukraine is energy self-sufficient nahi hai. They depend on supplies of oil, etc. from outside sources or gas. So they were having a resource crunch, and they were during winter months. There used to be so much of blackouts and stuff. So what they did was siphoning off, for which Russia didn't know for many years. And once this was detected, they said, "What's going on?" Says, "Well, it's passing through our territory. We thought as a friendly country, we'll just make use of it temporarily, and we will compensate you." Never done. They don't even know how much they owe. So that is why you are talking about Nord Stream, is because of that, bypassing first of all Ukraine, so that on the way pilferage doesn't take place. Also, they were getting supplies from other countries like Turkmenistan, etc. Because once this pipeline was stopped, then they had to get something, and Turkmenistan started giving them, but there was no money to pay, so they had to stop. Also from there, so this is where these are the issues which affect their economic system. Sorry, I just add to that. You see, Germany was getting gas from Russia at $270 per 1,000 cubic feet. Now that they have said sanctions are humne band kiya hai, they are buying the same gas from the United States at $1,000 per 1,000 cubic feet. No wonder they have said. Sir, how long can it? How long can they do it? You see, all this is very well. Sanction laga do, sabko force karo to put sanction. But after all, Germans may be to, and it will not just affect the heating of houses. In winter, all houses heating is on this gas. Your electric supply is fed by gas, and your aluminium plants, your titanium plants are all run on gas. Gas stops, these companies will fold up and sink. Absolutely. So therefore, it is extremely important. It's extremely important that beyond a point, Europe will not be able to sustain. Germany, they to already haath khade karti hai. 40% of European gas comes from Russia. Absolutely. So how long will they do without it? Russians are saying, "Theek hai, if it doesn't happen, we'll start delivering there to the Chinese." And like you said, the people who will gain the most from these sanctions are the Chinese. You are driving Russia into the arms of China. Now, I just like to say two things. Professor John Mearsheimer, one of the greatest American geostrategic thinkers, he and Henry Kissinger had said, "Please identify to America who is your main enemy. Is it China? Is it Russia?" Henry Kissinger had said, it should be settled maxim of American foreign policy never to take on more than one major Asian power at a time. Major Asian power means either you take on Russia, or you take on China, or you take on Japan, or you take on India. Not more than one at one time. And that is why in 1971, Henry Kissinger had come and made that opening to China, that Richard Nixon time, so that they got China out of the Russian camp. Now, the correct strategy would have been to make peace with Russia, which is after all a European white country. Okay? Make peace with Russia and go for your main enemy, China. This is what American experts are saying. And there is a foreign policy magazine, जिसमें कि Michael McFaul, in February issue, has written, he's again one of their diplomatic top thinkers, he says this is the time for Joe Biden should have made a grand strategic gesture. Okay, we will relook at European security architecture. We will take a relook at the arms controls agreement, which are now out of date. So we will upgrade them. And as part of this, we will discuss Ukraine. But then you see the problem in the democracies is monthly ratings. उसकी रेटिंग तबाह हो गई है आफ्टर अफगानिस्तान जो बाइडेन की. It has hit the dumps. Now with Ukraine, it is going to further hit the dumps. And he is not capable of a strategic thinking or strategic gesture. He is thinking tactically. And now, look, the world is, please forgive
the military specialists of the world for being skeptical. When they say, "Aap Taliban se bhag gaye," now you are saying we will take on Russia and China together. तो ये तो इसको बोलते हैं शेख चिल्ली. I mean, nobody will buy this line. Nobody will buy this line. So my advice to them would be to forget now this, cool things down. It is in their national interest, because the only power that is getting benefited is China, and the rest of the world is facing a collapse, economic collapse, including India is facing economic trouble. So our effort should be to tell our Russian friend, भैया जल्दी करो, जो कुछ करना है करो, wind up with it. And it will be in Zelensky, if he is concerned about the people of Ukraine and not making himself a media star. He was a comedian as it is. So he is enjoying the media attention. But in that media attention, you can't be like Nero. You saw him winking on television. Did you see him winking on television? गाना सुन, स्टेज पे जो गाना गा रहा है वो आपने देखा होगा ना? Do you see? अगर नहीं तो आपको भेजूंगा. Please, because this man is now. He was very elated. This is like Nero. Standing ovation in. This is like Nero. So we will all pray for peace The and. military aspect and the diplomatic aspect. We are very grateful that we got to hear your views, and obviously our attendees also enjoyed this. So thank you so much. Now I would request Virendra Gupta ji to convey my thanks to General Bakshi who invited me. Rather, I would say not a good fit in such a war discussion. But the poets have their own way of communicating. So I'll read two small poems, which basically convey the essence of the piece. One poem called Turmoil. Man-made turmoil singes nations and continents. Violence in thoughts and actions compete with weather forces to play havoc and turbulence. Surface tensions on earth, but a tranquil flower grows along with a blade of thorn. Yet the world remains violent and torn. Very nice. Very nice. Cosmic order remains orderly. Cosmic order remains orderly as sun rises timely and the moon wanes on its cycle. The planets do not collide, nor the universe tumbles. The man never learnt, for ages remain ignorant. Wonderful. Beautiful.